A very good morning, all of you. Today we will start user-related operations. In last lecture, we already seen how to add a user, how to add group. So today we will add a user by using another command. Also, we'll discuss last part of the session. How we'll add a user by using add user command and user add command. So let's start. First of all, here I will open a terminal. Okay. So before adding user, you must know that where user information will be added or where user information will be stored, where group information will be stored. Well, first of all, we'll check that. So to view the file, we need to use viewing commands called as a cat command, head command, and tail command. We already know that cat command is used to view the content of file, full file. Okay, for example, if your file contains 1000 line, then by using cat command we can able to view 1000 lines. But by using head command and tail command, we can view a specific lines. Okay, so by default, by using these two command, head and tail command, we can find out only 10 lines. Head command upper part of 10 lines, tail command lower part of the 10 files. So whenever we the user, that information will be stored in passwd file, which is placed in etc slash passwd file, and that information will be stored in a bottom. If the information will be stored in a bottom, then obviously we can use tell command to view the content of file last 10 lines. So according to your knowledge, according to your concepts, we need to decide which terminology we can use to view the file. Either we can use cat command, either we can use stack command, either we can use head and as well as tail command. So depending on the knowledge, we can decide which command is important to view the content of file. If you want to check the content of file, top side of content of file, then I have option called as a tag and cat and head command. If you want to check bottom content, then we will use tail command. If you want to check reverse order content, then we will use tab command. So before adding a user, we must know that where the information will be stored. So user related information always stored in slash etc slash passwd file, and group related information is always stored in slash etc slash group. These two files are most important. Whenever we added a user or whenever we can add a group, that two information, that user information and group information will be stored in these two files. These are very important files. These are the configuration files, and the password will be stored in a file called as a shadow, and which will be placed in etc folder slash etc slash shadow. So the information will be stored in a shadow file. The shadow file is fully encrypted. We cannot able to view the password of file. The password of file will be converted in encrypted format, so we cannot able to view that. But information about all the passwords will be stored in a shadow file. So every user or every person must know that where the information will be stored. If someone asks or if interviewer asks where the user related information will be stored, then answer is slash etc slash passwd file. If interviewer asks where the group information will be stored, then we need to specify the answer slash etc slash group. If someone asks where is the password stored, then we can say that the slash etc slash shadow file. Now we need to add the user. Similar way, we have two ways to add the user. First way, by using one more way is available. First way, we can add user by using add user command. Also, we can use by using user. Yeah, these are two ways by using that we can add the user. But difference is that whenever you use first command, we need to provide full information, like we need to provide username, we need to provide group name. After that, automatically group name will be selected, and after that we need to provide a password, full name, room number, like such information
need to provide when we add a user by using add user command. But whenever we add the user add command, user by using user add information, there's a no need to add that information. Just user will be created and the password of that user will not set. We need to set by using a passwd command. So most of the company, the user will be added by using first command. Second, the future user will be created by using second command. We will discuss one by one. First of all, we will check first way add a user. Okay. We already discussed by using any other user, we need to use a sudo privileges. If you have a root user, then we can add just add user username. Like if you want to add user by using a root command, a root user, then simply we need to use add user and username as whatever it may be. जो भी आपको देना है वो आप दे सकते हो. But when you add a user by using a normal user which is not a super user, then we need to add sudo privilege. Most remember, it is a mandatory to use a sudo privileges. Without a sudo privileges we cannot able to add a user by using a normal user. So here we can need to add sudo add user, suppose username. By using that we can add. Similarly, we can add user by using command also. So here I will use sudo user add and username. We'll discuss what are the difference between these two methods, why these two methods are given. If we add a user by using first way, then why we use a second way. Okay, we'll discuss one by one. Here I will use a username as a PESCOE. First of all, we'll check that does PESCOE is available in our passwd file which contains the information about the user. So there are different types by using a grep which already discussed why we use grep command. If you want to find the content of a file, if you want to check a name in a file, then we will use a grep command. Also we can check by using a tell command also. First of all we'll check tell hyphen n10 last 10 lines slash etc slash passwd. What does it mean? It will check last tell command is used to view last 10 lines. Okay, either we can use 10 lines or we can change it from 5 lines depending on. If we did not provide any information, then automatically last 10 lines will be displayed. We'll check that. In that, Arvind is there, Test is there, Vishal is there, Test 1 is there, and SCCS is there. There is no user available in last 5 lines. Also, we can check by using grep command. Grep, the name of user as a PESCOE, where we need to check slash etc slash passwd. Right now we don't have a user as a PSC. Like grep will check as a ESE CSE which is already created in last session slash etc slash passwd. See, the SCCSE user is available. That means what? Grep command is used to find out the content of file. Okay, if you want to search a particular name in a file, then grep command is used. We will discuss later deeply. Okay, now what does it mean? The PES user is not listed in passwd file. Every admin user must check whether that user is already created. If user is already created, then we cannot able to create another time. That's why we need to check the previous entries of user. And where we will check that entries? We will check that entries in slash etc slash passwd file. So before creating any user, we must check whether that user is available or not. Okay, now I am creating a user by using a normal user. Then sudo privilege is mandatory. Sudo add user. After that username is PESCOE.
Here I'm creating a user called as a PESCOE. Whenever we are using add user command, then automatically same group will be created as a PESCOE. There is a no need to create group. Okay, whenever we add user by using add user command, automatically group name are created. Make a note of that. See, we need to provide privileges of that super user, add user. uh, See what he is saying, the group PASCO is already existed. What does it mean? When we trying to create add user PESCOA, at that time a group name will be automatically created. So first of all, we'll check whether the group is available. I'm using tel slash etc group. Yeah, the PES group is available. What does it mean? That means we cannot able to create a name user as a PESCOE. Why? Because the group name is already available. I'm trying to create a user, then why it not created? Because the group is available. When we add any user by using add user command, that time group is automatically created, but group is already present, that's why the user is not created. So here I will delete that PSUE group, sudo del user del group. We'll discuss what is a del command, okay, later on. First of all, we'll discuss only add user command. Now done. We'll use same command, sudo add user pus. We'll check that. Now see, adding we adding new group PUC, that was automatic task. It is not manual task. It was a task. Adding new user PSCOE number as a 1005 unique numbers, where we need to specify these are the unique numbers. Creating home directory, the home directory is also automatically created. We'll check out कि home directory create हुआ है क्या नहीं. For that we need to use mean another term. Okay, cd slash home ls. Now check out, where is that? See, a PSCOD home directory is automatically created. We'll check out is not completed, but we are checking the user or that information is created not. Tel slash etc slash group, that group information will be stored. Now at the bottom you can check that the group is also created. These are the automatically tasks. Okay, the group is also created. Great. Now we need to provide the password. We'll discuss this scale file in next few minutes. Okay. So the we need to provide a password. Here I'm providing a password as a Red Hat. Now password successfully. Okay. इसमें क्या करना होता है कि we need to carefully read all the lines. ओके, इसके अंदर पूरे के पूरे लाइंस जनरेट होते हैं, डिस्प्ले होते हैं, वो पूरे के पूरे आपको पढ़ना है. पासवर्ड अपडेट सक्सेसफुली, changing the user information for PESU and new values or press enter for the default. Okay, if you want to change the name, here we need to pass. I don't want to change, so I will use enter. Room number, I don't want to add room number, work phone number and home phone number. Other, even I don't want to add other information. Is information is correct? If we press yes, y, then the information will be stored. If we press no, the information will be deleted. But group name is created and directory is created. Make a note of that. Why? Okay. Now our user is created. Now user is created. Where we check? We'll check tel
hyphen n1 last one line slash etc slash passwd. Check out the user PSU is available having user ID. We also discuss in today's session. We'll discuss what is X, what is this, what was this, what is this, like that. We will discuss. This one is a group ID, this one is a commit name, this one is a home directory, and this one is a login chain. Okay, that's what our user is successfully created. We will also check whether the group is created by using slash etc slash group. PESCUE is available. What does it mean? Our user is successfully added. Now we'll check by using login. So here I will use sudo su hyphen space the name of user. sudo ये किसके लिए यूज होता है? इट इज अ यूज फॉर लॉगिन. किसके लिए होता है? लॉगिन के लिए. sudo here I'm trying to log in PESUA. Right now I'm available in old username, that is Arvind. Now we are trying to log in into PESUA. We'll check out. Click on that. See, now I'm logging into PESUA. Where I am, who am I? See, I am a PESUA user. Okay, so like that, here we need to add the user. Okay, does anyone have any query to add the user? If yes, kindly raise your hands. If no, then we will add user by using another command. Pratik, येस सर. हा, काही क्युरी आहे? सर आपण तिथं सुडो मग SU आणि हायफन यूज केलं ना सर. हायफन यूज नाही केलं तरी होतं ना? हो, शेल चेंज होतात त्याचे. सी, sudo su pesue. राइट नाउ अब एग्जिट करता हूँ. ओके, sudo su hyphen pesue. See the difference? This one is directly connected to the home directory and this one is directly connected to the root directory. ओके सर. Okay, so I will suggest this method. We can use also this, but I will suggest this one. Okay, use hyphen. So we directly connected to the root directory. Okay, if you want to use a home directory, then we can use this way. Anything else? Shall I proceed? Yes, sir. Okay, Shruti, do you have any query? No, sir. Okay, great. So we'll start next. Now the next step, we are adding user by using user add command. See, user add command से आप क्या करेंगे? User add करेंगे. Yeah. Now check out sudo user add. Here I will add user add, and the name of username is a PESC1. Okay, here I'm using, click on that. So here asking for what password of super user, enter. ESCO is not in the sudo user. Okay, okay, right. So exit. Now here we'll add sudo user add PESCOE1. Now check out. कुछ भी पूछा है कि इसने? नहीं. इसने पासवर्ड पूछा? नो. Group create हुआ? No. We'll check out whether the user is created or not. So tell hyphen last one line of slash etc slash passwd.
Now check out the PESCOE user automatically created. ये ऑटोमेटिकली क्रिएट हो गया है. उसके बाद में ये क्या है? यूजर आईडी, ग्रुप आईडी, this is event name, this one is a home directory, even login share is also not available of that user. That means whenever we add user by using user add command, no group will be created. We'll check out whether the group is created. See, last group is a PESCV. Yeah, group is created. No information will be created. मतलब उसने पूछा ही नहीं. पासवर्ड पूछा क्या आपको? नहीं. शेल पूछा है क्या आपको? नहीं. सो शेल की इंफॉर्मेशन भी नहीं है. प्रीवियस अगर देखते हो आप, सी last two, here is a PS or difference between last two commands. Okay, होम डायरेक्टरी यहाँ भी अवेलेबल है, होम डायरेक्टरी यहाँ भी अवेलेबल है, बट लॉगिन शेल जो होता है, दैट टर्म कॉल्ड एज अ, डिस्कस वन बाय वन. आपको लॉगिन शेल के बारे में भी बताऊंगा, बट दैट टर्म कॉल्ड एज अ लॉगिन शेल. ओके, यहाँ लॉगिन शेल अवेलेबल नहीं है. दैट whenever we try to log in into PESCOE1, then login तो होगा बट शेल उसको नहीं मिलेगा. ओके, सो चेक आउट sudo su hyphen PESCOE1. now check out no directory लॉगिन विद होम. यहाँ डायरेक्टरी अवेलेबल है क्या? नहीं. यहाँ डॉलर सिंबल अवेलेबल है ओनली. अब यहाँ से मैं एग्जिट करता हूँ एंड सेम वे से ओनली PSCV में लॉगिन करता हूँ. जैसे भी PSCV में लॉगिन करता हूँ तो यहाँ कुछ भी ऐसा एरर नहीं आता है. तो that whenever we add user by using add user command, the some prerequisite skeleton file automatically copied from root directory to your shell. ओके, जैसे भी मैसेज आता है ना, स्केल फाइल्स आर कॉपीड, तो इसके अंदर ऐसा कोई मैसेज नहीं आया. दैट्स व्हाई ये डॉलर 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 इन्फॉर्मेशन ऐसे दिखाई दे रहा है. और यहाँ इफ विल गेट अ मैसेज नो डायरेक्टरी लॉग इन विथ होम. That's why to resolve that problem, we need to copy the scale files from a particular another folder to this folder. एक तो फोल्डर से कॉपी कर सकते हो या रूट जहां स्केल फाइल स्टोर है वहां से भी आप कॉपी कर सकते हो. So I will suggest use add user right now. Being a fresher, you can use add user command to add the user. After expertise, you can add user by using user add command. Okay, so इसे प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल हम कहाँ जाते हैं? cd/home या विल डायरेक्टली कॉपी cp/home. एक यूजर था PESCOE. यहाँ डॉट ऑल करेंगे. डॉट मीन्स हेडर फाइल रहेंगे पूरे. ओके, कहाँ को /home पे एंड न्यू यूजर की डायरेक्टरीज में करना है. ओके, PSCO के अंदर. Before that, here the command will check out cd home. इसके अंदर गया cd PSCOE. now ls, यहाँ एक example dot फाइल है a. ओके, ls हाइपन a से क्या होता है? जो भी आपकी हिडन फाइल्स है ना, हिडन, आपकी हिडन जो होते हैं ना, उसकी इंफॉर्मेशन डिस्प्ले होती है. चेक आउट ls फाइल अपने सी dot bash rc, see dot profile, dot bash logout, dot bash history. These are the 4 skeleton file. अगर आपके ये फोल्डर के अंदर है, then easily we can log in into system. otherwise हम log in नहीं कर सकते. log in करने के बाद में आपको शेल नहीं मिल पाता. so for that reason हम क्या कर सकते हैं? अब हम प्रीवियस फोल्डर में आते हैं. cd PESCOE1. ओके, इसी कॉपीड नहीं है, इसकी वजह से हम अंदर भी जा नहीं पा रहे हैं. cd PSCOE1 is available. oh, directories are not available.
Yeah, that's why if directories are not, if directories are not available, then how we can work on that. Okay, so do one thing, we'll make a copy of that. Yeah, this command, इससे हम क्या करेंगे, cp स्लैश होम PESCV डॉट स्टार, डॉट मतलब हिडन फाइल जितने भी है, that will be copied into PES folder. Right now folder is not available, then automatically it will be created, not directory. Okay, we'll do one more thing, mkdir PESCOE1 COE1. Permission denied. Here I will use a super password. Oh, the problem is, here is a problem because we are trying to log in from PES user and it is a normal user. Yeah, now cd slash home ls. Here we will create a directory mkdir PESCOE1 and here I will use sudo. Done. Ls PESCOE1 is created. Now we will copy the scale files cp slash home PESCOE slash dot star. इवन वी कैन यूज टेस्ट फोल्डर, टेस्ट डायरेक्टरी के अंदर की भी फाइल यूज कर सकते हैं। ऐसी सी एस सी की ऐसा नहीं मैंडेटरी की पी एस सी यूज करना है, ऐसी एस ई सी एस सी, जस्ट वी नीड टू कॉपी द हिडन फाइल्स। ओके, फ्रॉम वेयर दिस वन इज अ सोर्स, ये आपका क्या है पूरा सोर्स, स्लैश होम स्लैश एस ए सी एस ई, ये आपका सोर्स है। वी नीड टू कॉपी दैट फाइल फ्रॉम होम टू PESCOE1. Is it okay? See, directory, omitting the directory, that means it's trying to copy. Permission denied. Okay, just we need to read it here. Now the omitting, that means the data will be copied. We'll check out cd PESCOE1 ls, no files are available. LA. Now see, in that folder, bash history, bash logout, bash rc, and bash, sorry, profile files are updated. That means the files are updated. Now, where now we will try to log in into PSCV1. We'll check out sudo su hyphen PESCOE1. See, now we are logging into PSU. Yeah, earlier it was earlier आप लॉगिन नहीं कर सकते थे बिकॉज शेल अवेलेबल नहीं था। ओके, सो ये याद रखना है आपको कि जब भी आप यूजर ऐड कमांड करते हो तो आपको शेल क्रिएट करना पड़ता है, सॉरी यूजर ऐड करते हो तो आपको एक डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ता है एंड वी नीड टू प्रोवाइड दैट डायरेक्टरी। ओके, और एज वेल एज डायरेक्टरी प्रोवाइड करने के बाद में भी आपको हिडन फाइल्स उसके अंदर कॉपी करना पड़ता है, देन एंड देन वी कैन एबल टू log in into system. Who am I? Now check out. I am a PESCOE1. So according to you, which better, which command is better? You can decide. Either we can use add user command to add the user. Either we can use user add command to add the user. So I will suggest use first one because all जो आप सभी है वो बिगिनर है, बिगिनर के लिए we can use add, but still किसी ने पूछा only one command is available to add the user, so at that time we can also say that user add command is also available to add the user. Only difference is in the user add command we need to create a home directory as well as we need to copy the scale मतलब folder, scale files, older file जैसे login और logout की information stored होती है उसके अंदर, we need to copy that scale files from another user to that particular user, then and then we can able to use that user add command. Okay, so does anyone have any query so I can solve that query? If no, then we will proceed for next. I'm waiting for your answer. If yes,
तो आप बताइए, नहीं है तो आगे चलते हैं। That it was a little bit hectic, but we need to do the practice, and by using practice we can achieve the mastership. We can say that we can achieve the mastership in Linux. For that we need to do the practice. If we trying to perform some operation, then we can able to do the practice. Does anyone have any query? Yes or no? No, sir. Okay, great. हॅलो सर. हाँ बोला. सर ॲड युजर आणि युजर ॲड मध्ये जास्त डिफरन्स आहे का? हाँ, डिफरेंस इन द सेंस, फॉर बिगिनर आपको क्या करना पड़ता है, ऐड यूजर से जैसे भी आप यूजर ऐड करते हो, there is a no need to copy the skeleton files, even though there is a no need to create a home directory. होम डायरेक्टरी क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं, बट व्हेन वी ट्राइंग टू ऐड यूजर बाय यूजिंग यूजर ऐड कमांड, at that time we need to create a directory and we need to copy the files, scale files from one user home directory to another user home directory. So इतना ही difference है, that's it. ओके सर. Okay. Anything else? हे डोक्यावरून नाही जात आहे नाही सगळं, नो समजतंय ना? सर. आ रहा है क्या? Yes, sir. समजतंय सर. ओके ग्रेट, मुझे लगा सर के ऊपर से जा रहा है ये. नो सर. ठीक है. नाउ द नेक्स्ट, ग्रुप्स ऐड करने. सो ग्रुप्स ऐड करने के लिए भी ऐड ग्रुप कमांड इज अवेलेबल. ओके, एंड group add, these two commands are available. add group and group add. ये सिमिलर स्ट्रक्चर में इन दोनों में कुछ भी डिफरेंस नहीं है, बोथ आर यूज टू ऐड द ग्रुप, बाकी कुछ भी नहीं. जस्ट ऐड ग्रुप में थोड़ा एडिशनल प्रिविलेजेस है एज कंपेयर टू द ग्रुप ऐड कमांड. ओके, we'll check out. Before creating any group, we must check previous names of groups. वो ग्रुप एग्जिस्ट है या नहीं, we need to check out whether that group is existed or not. We need to check that file. Where we need to check? /etc/group. User related information will be find out in /etc/passwd command, but group related information will be displayed in groups. Okay, so here I will check tell last 10 lines, or we can say 8 lines, /etc/group. Check out XYZ group is available: ABC, Vishal, Test1, ACCSC, Web App Developer, PSCOE and PSCOE1. Here अब क्या करते हैं, हम एक ग्रुप ऐड करते हैं having name of PESCOE2. Okay, so by using normal user sudo add group, and the group name is PESCOE2. That's it. Enter adding group PESCOT, and the group ID is 1010. We'll discuss what is a group ID like that stuff देर बाद में ही check करेंगे. So by using this command we can able to add. Even by using sudo group add command is also available. We will create group PSCOE3. See, the PS303 group is also added, but difference is that here it displays the information, and by using this here the information is not displayed, but the groups are created. We'll check out -n2 2 lines tell command, bottom के 2 लाइन दिखाएगा /etc/group are created. PSCOE2 is also created, PSCOE3 is also created. but difference क्या है, ऐड ग्रुप करने के बाद में आपका ग्रुप आईडी है उसका इंफॉर्मेशन यहाँ दिखाया, एंड बाय यूजिंग ग्रुप ऐड कमांड जो ग्रुप ऐड हो गया, बट जो ग्रुप आईडी है उसका नेम उसने नहीं डिस्प्ले किया. इतना ही डिफरेंस है, दैट्स इट, कुछ भी डिफरेंस नहीं. ओके, बट आपको इसमें दो बातें याद रखना है. फर्स्ट, हाउ वी विल
we have two ways, add group command, group add command. दूसरा, where the group information will be stored, the group information will be stored in a slash etc slash group. Where the password will be stored of group, तो उसका password आपको g shadow के अंदर stored होता है. Okay, so here I will show you where the passwords are stored. Tel hyphen 2 slash etc slash shadow. Okay, see, uh, see the information like PES user है, ये PES user है, ये पूरा उसका पासवर्ड है. PSUN यूजर है, ये उसका पूरा पासवर्ड है. इट इज एन इनक्रिप्टेड फॉर्मेट, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड की है, ये पासवर्ड स्टोर्ड है. कैसा है, इनक्रिप्टेड, इनक्रिप्शन के स्टोर्ड होता है. वैसे ही ग्रुप्स की इंफॉर्मेशन जो स्टोर्ड होती है आपकी, ये होती है जी शैडो के अंदर. जी शैडो, सी, यहाँ इंफॉर्मेशन आपकी. पर आप ग्रुप को पासवर्ड, तो दैट मीन्स इसका पासवर्ड नहीं सेट है. यूजर का देते हैं तो उसके पासवर्ड्स आपके सेव होते हैं यहाँ, बट कैनॉट एबल टू डिक्रिप्ट दैट डेटा. हम डिक्रिप्ट नहीं कर सकते. ओके, ये सिस्टम रिजर्व्ड होता है. इज इट ओके? तो हमने 4 चीजें पढ़ी. कौन सी? ऐड यूजर, यूजर ऐड ग्रुप एंड ग्रुप ऐड. ये 4 चीजें हमने पढ़ी. अभी एक सिनेरियो ऐसा है, assume that you have a group already created. जैसे हम assume that हम we are trying to develop one web application. In that web application, to develop that web application, we have a group called as PQR. हमारे पास एक PQR एक नाम का ग्रुप है. In that already 5 members are working. Later on, one member, later on of years, or later on 1 month, 2 month, a new member is joined. At that time, we need to add that user to directly group. उसको हमें वो यूजर को डायरेक्टली ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड करना है. दैट मीन्स व्हाट, कि ऑलरेडी हमारा ग्रुप एग्जिस्टेड है. जैसे कंपनी में होता है कि एक ग्रुप है, एक लीगल टीम है आपकी, जो कंपनी में डेवलपर टीम है, विच इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन दैट प्रोजेक्ट. लेटर ऑन वी नीड टू हायर वन पर्सन, एक्सपर्टीज, उस एक्सपर्ट को हायर करना पड़ता है. लेटर ऑन वी नीड टू ऐड. दैट मीन्स ग्रुप एग्जिस्टेड है, उसमें मुझे एक पर्सन को ऐड करना है. ये सिनेरियो हमें अभी देखना है. हाउ विल डू दैट? ओके, सो assume that here we will create one group, sudo add group. Okay, and the group name is PQR. Okay, assume that the name of application is a PQR. uh, GR. Okay, regex error. Now done. PQR group is created. Okay, अब हमारा PQR नाम का ग्रुप क्रिएट हुआ है. We'll check out whether the group is created. -n1 /etc /etc के अंदर हम ग्रुप फाइल चेक करेंगे. See, the PQR group is successfully created. Now, अब assume that ये मैंने करके 5 months हो गए. लेटर ऑन एक न्यू पर्सन, न्यू एम्प्लॉय की एंट्री होती है. वी नीड टू ऐड दैट एम्प्लॉय टू आवर ग्रुप. ओके, so here we'll add sudo add user, and that person name is suppose Sanket. Okay, the new employee will be added into that particular group. तो इसका खुद का ग्रुप नहीं चाहिए मुझे. See, whenever
we add a user, automatically group will be created. But right now I don't want to add automatically group. Instead of that, I want to add Sanket to the PQR group, okay, which is already available. So here I will use sudo add user Sanket hyphen hyphen in group, and the name of group is a PQR. ओके, कैसे कर रहा हूं मैं कि एक यूजर ऐड कर रहा हूं संकेत का, फिर संकेत का जो यूजर है उसे मुझे ऑटोमेटिकली ग्रुप संकेत नाम का ग्रुप क्रिएट नहीं करने देना है, उसे मुझे ज्वाइन करना है. इंस्टेड ऑफ दैट संकेत ग्रुप आई वांट टू ज्वाइन दैट संकेत पर्सन एम्प्लॉय इनटू द PQR group. Okay, so for that we need to use sudo add user sanket, that is a username hyphen hyphen in group and the name of group PQR. Enter करो. See, add user संकेत, adding new user संकेत with group PQR. यहाँ दिखाई दे रहा है कि ऑटोमेटिकली संकेत नाम का PQR संकेत नाम का ग्रुप क्रिएट हो रहा है? नहीं. यहाँ संकेत नाम का क्रिएट हो रहा है क्या? नहीं. Here adding new user संकेत with group associated group PQR. Here we need to provide some details as a password. Want to store in information, the information is correct. Now we'll check tell hyphen last one and one slash etc and passwd, because user information will be stored in a passwd. So we will check, definitely we will check passwd file. See, Sanket user is a created. This one is a user ID. We'll also check tell hyphen and one slash etc group. Yeah, PQR group number is a 103. Now out Sanket is created, user ID is 100 and PQR group number is a 103. Also PQR is 1013. तो हमने संकेत को कहाँ एसोसिएटेड कर दिया है? 1013 के साथ में. Okay, also we'll check the groups. Okay, here. So that means what? Particular user that Sanket is associated with PQR. Okay, so ये मैंने क्या पढ़ा है आपको right now? एक user को later on group is already created, later on if you want to change, ऐसा भी होता है ना. For example, I have a group, I have 5 members in a group, और वो later on after few days a particular employee जो होता है वो कंपनी से चले जाता है. So we need to remove that person also. हमें वो पर्सन को रिमूव भी करना पड़ता है. या एक चालू है सॉरी एक ग्रुप चालू है, एक एप्लीकेशन डेवलप हो रहा है एंड एट दैट टाइम आपको एक पर्सन को ऐड करना है. सो ये मेथड आपको अवेलेबल होगा. सो व्हाट इज द मेथड? या कैसे ऐड करना है? sudo add user, name of user and hyphen in group and the name of. ओके, यहाँ तक कुछ क्यूरी है? अब दूसरा सिनारो पढ़ाने वाला हूं मैं. ये सिनारो में मैंने क्या पढ़ाया आपको कि ऑलरेडी एग्जिस्टेड और जो न्यू यूजर है उसको एसोसिएट करना. अब नेक्स्ट स्टेप में मैं ऐसा पढ़ाऊंगा आपको कि यूजर ऑलरेडी एग्जिस्टेड, मुझे उसे ग्रुप में डालना है. ये दो ही टर्म है इसमें. जैसे हमने यूजर ऐड कर लिया, ऐड यूजर कर लिया, ये टास्क खत्म कर लिया. ग्रुप ऐड कर लिया, ऐड ग्रुप कर लिया, ये भी टास्क खत्म कर लिया. नाउ यूजर क्रिएट करना है. ग्रुप एग्जिस्टिंग था तो मैंने वो ग्रुप में मैंने ऐड करना है, तो ये भी हमने टास्क कंप्लीट कर लिया. नाउ यूजर ऑलरेडी है मेरे पास, उसे मुझे पर्टिकुलर ग्रुप में ऐड करना है. इज इट ओके एवरीवन? Yes. Yes, sir. ग्रेट. नाउ अनदर सिनेरियो देखते हैं हम. ऑलरेडी आई हैव यूजर. फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे यूजर्स के नाम देखते हैं हम. टेल hyphen n5u slash etc passwd. So इसके अंदर ACCAC यूजर इज अवेलेबल.
ओके, हम ACCAC को क्या करते हैं, यूजर इज ऑलरेडी अवेलेबल बट ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। ओके, ग्रुप का नाम एजम करते हैं हम, व्हाट वी से, डेव। ओके, ग्रुप का नाम हम डेव रखते हैं। सो नाउ sudo add group, कौन से यूजर को करना है, SECSC, और ये क्या है, यूजर है, और कौन से ग्रुप के अंदर करना है, डेव के अंदर करना है। समझ में आ रहा है? sudo ग्रुप किसको ऐड करना है, SECSC को, किसके अंदर करना है, डेव के अंदर करना है। ओके, नाउ डन, the dev group is not exist, oh sorry, so that's mean sudo add group dev. Now we'll perform this operation, adding user SCCSC to the group called as a dev, adding user SCCSC to dev. Okay, now we'll check that SCCSC, before that हमें ग्रुप में जाके क्या करना है, -n1 dev का आईडी चेक करना है। ड्रेव का आईडी क्या था, ऐसी मॉडिफाई करने के लिए यूजर मॉड कमांड होती है, वो थोड़ी देर बाद पढ़ेंगे हम मॉडिफाई करने के लिए। SCCSC ग्रुप क्या नंबर है, 10, इज ग्रुप, उसका आईडी 1014 है, और उसके साथ में अभी एसोसिएटेड हो गया है SCCSC, यहाँ भी दिखाई देता है। और ऑल्सो वी कैन चेक टेल -n5 स्लैश etc स्लैश passwd, यहाँ SCCSC दिखाई दे रहा है आपको, यूजर आईडी क्या है 1004, बट ग्रुप आईडी क्या है 1007। नाउ इट इज एसोसिएटेड विथ डेव, तो आपको SCCSC नाम दिख रहा है किसके आगे, डेव के आगे, दैट मीन्स एसोसिएटेड हो गया है डेव के साथ में। जस्ट 1 मिनट, टेल -n5 स्लैश etc ग्रुप, इससे आपको क्लियर पिक्चर आ जाएगा। सी PQR के आगे कुछ है क्या, नहीं है, बट डेव के आगे SCCSC लिखा है, दैट मीन्स कि SCCSC, now SCCSC is associated with dev also, and SCCSC is associated with group also। यहाँ आपको क्लियर पिक्चर दिखा, is associated with 1007 ऐसा भी है, and SCCSC is associated with 101। मतलब यहाँ क्या हुआ है कि जो SCCSC यूजर जो है आपका, ये दो ग्रुप के साथ एसोसिएटेड है, एक तो खुद ग्रुप के साथ में भी एसोसिएटेड है, एज वेल एज डेव ग्रुप के साथ में भी एसोसिएटेड। दैट मीन्स हमने यहाँ दो चीजें पढ़ी कि एक ऑलरेडी एग्जिस्टेड ग्रुप है, उसके अंदर अगर यूजर को ऐड करना है आपको, तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ sudo add user, ओके, यूजर नेम, यहाँ मैं यूजर नेम लिख हाइपन इन ग्रुप, और इसके अंदर ग्रुप नेम लिखना पड़ता है बाय यूजिंग दिस। अब नेक्स्ट सिनेरियो में क्या है कि एग्जिस्टेड यूजर भी है, एंड एग्जिस्टेड, यहाँ लिखता हूँ, एग्जिस्टेड यूजर मेरे पास, एंड एग्जिस्टेड ग्रुप भी है मेरे पास। तो इस केस में आपको उसको और ग्रुप का एक्सेस देना है, तो वी नीड टू यूज हैश sudo add group यूजर नेम, और उसके बाद में ग्रुप नेम, ये याद रखो। ऐसा हो सकता है कि ऐसा सिनेरियो इमेजिन करो, ऐसा कभी हो सकता है कि एक यूजर है वो मल्टीपल ग्रुप के साथ में एसोसिएटेड है, द यस, हो सकता है ना, मल्टीटास्किंग भी होता है ना पर्सन। फॉर एग्जांपल एक कंपनी का एम्प्लॉय है, उसे लिनक्स भी आता है, उसे डेवलपमेंट भी आता है, लिनक्स आता है, डेवलपमेंट आता है, नेटवर्किंग आता है, दैट पर्सन इज एसोसिएटेड विथ लिनक्स टीम as well as networking team as well as development team।
ऐसा सिनेरियो हो सकता है, वन यूजर कैन एसोसिएटेड विथ मेनी ग्रुप, ओके। बट अगर ऐसा केस होता है तो जो भी एसोसिएशन होता है तो उसके आगे लिखा जाता है। जैसे डेव नाम का एसोसिएशन है, डेव नाम का ग्रुप है, जो भी यूजर्स है एसोसिएटेड ग्रेटर देन वन, तो उसके नाम आगे आते हैं। ओके, सो नाउ विल चेक वन मोर टाइम। हम यही ऑपरेशन को फिर से करेंगे। सूडो क्या करना है हमें कि पर्टिकुलर एग्जिस्टिंग यूजर है, सो ऐड ग्रुप नेम एज PESCUE एंड एसोसिएट उसे करना है डेव के साथ में। नाउ विल चेक सेम कमांड। यहाँ देखो आप, डेव के साथ में SEC भी एसोसिएटेड है एज वेल एज PESCUE भी एसोसिएटेड। इवन वी कैन परफॉर्म सेम ऑपरेशन वन मोर टाइम। टू अवेलेबल नहीं है, अवेलेबल है। नाउ चेक आउट, सी एट द बॉटम डेव के साथ में SECAC एसोसिएटेड है, PSCU एसोसिएटेड है, PSCV वन भी एसोसिएटेड। इज इट ओके एवरीवन? यस यस सर। सर। ओके ग्रेट। नाउ जैसे हमने ऐड किया है वैसे हम डिलीट भी कर सकते हैं। ओके, डिलीट के लिए डेल नाम की कमांड को यूज करना है। यहाँ भी ऑप्शन है हमारे पास, यूजर डेल, डेल यूजर। ओके, हम दोनों में से एक यूज कर सकते हैं। तो वी विल यूज ऐड यूजर। जैसे है तो यूजर डेल भी कर सकते हैं या डेल यूजर भी कर सकते हैं। ओके, सो विल प्रेफर डेल यूजर। सो del user and del group है शायद से, we'll check out one. So before that we will delete some users, del hyphen n5 slash etc slash passwd के अंदर के हम यूजर्स डिलीट करेंगे। फॉर एग्जांपल विल डिलीट संकेत एंड विल डिलीट PSCU। संकेत इज एसोसिएटेड विद ग्रुप, सो PSCU हम डिलीट करते हैं। sudo del user संकेत, sorry, PESCUE1, see, removing user PES1 and a warning आ रही है क्या, PSCUE1 has no member। ओके, सो ये PSCUE मेंबर किसका था, डेव का भी मेंबर था। अब चेक करेंगे वही डेव कमांड जो हम सी, यहाँ PSCUE1 नाम दिखाई दे रहा था ना पहले, अब नहीं है, क्यों, यूजर ही डिलीट कर दिया है। ओके, सो डिलीट कैसे करना है, sudo del यूजर एंड यूजर का नाम क्या है, PESCUE। नाउ देख, रिमूविंग यूजर PESC। अब ये डेल यूजर से आपको पॉपअप मैसेज दिखा रहा है। अगर आप यूजर डेल करते हो, ओके, तो ये पॉपअप मैसेज नहीं दिखाएगा। sudo यूजर डेल संकेत, सी, तो मैसेज, ये यूजर तो डिलीट हो गया बट यहाँ पॉपअप मैसेज नहीं दिखाया, जो ये आपको टेक्स्ट इंफॉर्मेशन आउटपुट आता था ये नहीं दिखाया। विल चेक आउट टेल हाइपन n5 etc स्लैश पास w। यहाँ आपको संकेत नहीं दिखाई देगा, यहाँ आपको PSCUE नहीं दिखाई देगा, आपको यहाँ PSCUE1 भी नहीं दिखाई देगा, बस हमने वो क्या किया है, डिलीट किया है। तो ये कमांड भी बहुत यूजफुल है इफ यू वांट टू डिलीट द यूजर। अब ये कब करना है, जब आपका एम्प्लॉय छोड़ के जाता है या एनीथिंग एल्स जो ऑप्शंस होते हैं वहां आपको डिलीट करना है। नाउ विल चेक आउट ग्रुप आल्सो, del slash etc slash group। इतने सारे ग्रुप्स है मेरे पास, विल डिलीट दैट। sudo del group and the name of group is a dev। now removing dev, which dev अवेलेबल है क्या मेरे पास, नहीं, विल डिलीट PQR, PQR ये भी हो गया। अब हम कमांड भी यूज कर सकते हैं, sudo ग्रुप del PWR,
सेम है, यहाँ आपको पॉपअप मैसेज नहीं दिखाई देगा। ओके, आप हर एक के पास आपको दो ऑप्शन है। ओके, सो बाय यूजिंग दैट हम डिलीट भी कर सकते हैं, आप डेल कर सकते हैं तो आपको ऑप्शंस दिखाई देंगे, PSUE3, PSUE2, ना चेकआउट, आपके पूरे के पूरे वो जो ग्रुप डिलीट हो गए। तो सिंपली आपके पास ऑप्शंस क्या क्या है, इफ यू वांट टू ऐड यूजर वी हैव ऐड यूजर एंड यूजर ऐड, if you want to add group then we have add group and group add, if you want to delete this del user del, and if you want to delete the group del group del. I will prefer this first, these four options, add user, add group, del user, del. अगर थोड़ा सा भी एक्सपर्टीज आता है इन आपकी प्रैक्टिस करने के बाद में, देन आई विल सजेस्ट यूज दिस वन, ये सजेस्ट कर आपको इन फ्यूचर। राइट नाउ विल सजेस्ट ओनली गो विथ ऐड यूजर, गो विथ ऐड ग्रुप, डेल यूजर एंड डेल ग्रुप। राइट नाउ यही प्रिफर करो। इज इट ओके? यहाँ तक किसी को कोई क्यूरी है? सर हम्म युजर ऍड करतो तेव्हा आपल्याला हिडन फाइल्स मॅन्युअली कॉपी करावं लागतात, तर मग या युजर डेलच्या टाइमला डिलीट पण करावं लागतात का मॅन्युअली? नाही, ऑटोमॅटिकली आता ते डिरेक्टरीज डिलीट नाही होत। सी cd/home यहाँ दिखाई देगा। सी संकेत हमने डिलीट किया है कि नहीं? संकेत यूजर डिलीट किया है ना, यस सर। बट उसकी डायरेक्टरी अवेलेबल है, उसका जो डेटा है, डेटा कभी डायरेक्टली डिलीट होता है, मैन्युअली डेटा डिलीट करना पड़ता है तो ही डेटा डिलीट हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो सकता। दैट मीन व्हाट डज इट मीन, जब भी आप यूजर भी डिलीट करते हो ना तो उसकी डायरेक्टरी अवेलेबल होती है। ओके, अगर ये डेटा जो होता है, ये जो ओनरशिप होता है ना डेटा की, एक एम्प्लॉय अगर एक इंस्टीट्यूट में या एक कंपनी में काम करता है तो वो कंपनी उसको पे करती है किसके रिगार्डिंग, उसकी सर्विस के रिगार्डिंग, एंड सर्विस में क्या आता है, डेटा आता है। ओके, डेटा को वो डैमेज नहीं कर सकता है, दैट्स वाई यूजर अगर डिलीट भी होता है तो हाँ, उस इतनी फाइल्स बनाए वो मैनुअली डिलीट कर सकता है, बट उसको हम रेस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। इसकी वजह से जब भी यूजर को डिलीट किया जाता है या यूजर को रिमूव किया जाता है तो उसकी जो डेटा है, उसकी जो इंफॉर्मेशन है, वो उसका ओनरशिप कंपनी के पास होता है, बिकॉज कंपनी इज पेइंग फॉर हिज वर्क। ओके, कंपनी उसको पे कर रही है, पेमेंट कर रही है किसके लिए, उसके वर्क के लिए। दैट मीन्स द ओनरशिप ऑफ दैट डेटा टोटली गोज टू द कंपनी। तो इसकी वजह से वो डिलीट नहीं कर सकता, बट मैनुअली करना है तो कर सकता है, उसके लिए भी रेस्ट्रिक्शंस होते हैं। तो अगर अगर यूजर को लग रहा है मुझे डिलीट करने वाले या मैं जाने वाला हूँ तो वो डिलीट कर सकता है, बट मोस्ट ऑफ द कंपनीज क्या होता है, प्रोटेक्शन रहता है, एडिशनल प्रोटेक्शन, सो यूजर कांट एबल टू डिलीट दैट फाइल। ओके, सो ओके। स्केल फाइल अभी भी अवेलेबल है, डिलीट नहीं हुए। इवन हमने यूजर डेल से भी करो या डेल यूजर से भी करो, यूजर फाइल्स वैसे की वैसे केप्ट रहते हैं। ओके, ओके सर। या ग्रेट। एनीथिंग एल्स? अब थोड़ा सा हार्डर पार्ट देखने वाले हैं हम, इसके लिए मैं प्रीवियस का जो भी ऑप्शंस है वो एक बार रिवीजन कर लो, या इफ यू वांट आस्क एनी if you have any query then let me know, I will resolve that and after that we will proceed for next। और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना, ये जो प्रैक्टिस होता है ना, इसके रिकॉर्डेड वीडियो आपको देखना पड़ता है। व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस आप भूल जाते हो बिकॉज इट इज एन फर्स्ट टाइम। लिनक्स कैसा है कि सीखने में ऐसा लगता है कि बहुत इजी है, ओके, व्हाइल लर्निंग, बट व्हाइल डूइंग द प्रैक्टिस आपको पता चल जाता है कि इट इज अ हार्ड। बट व्हेन व्हाट वी से, व्हेन वी आर डूइंग अ मोर प्रैक्टिस देन आप उसके उसके ऊपर आपका कमांड होता है। सो दैट्स वाई मैं ये पूरे के पूरे लेक्चर्स रिकॉर्ड कर रहा हूँ
स्टिल सम स्टूडेंट्स है उनका नेटवर्क का issue होता है या एनी अदर थिंग्स होता है, सो दैट वीडियो कैन व्यू नंबर ऑफ टाइम्स। इसकी वजह से मैंने ये वीडियो रिकॉर्ड भी किया है। आफ्टर फ्यू टाइम्स थोड़ी देर बाद मैं आपको प्रोवाइड भी करूँगा। इज इट ओके? ओके सर। या ग्रेट। Yes, sir. या आगे चलना है ना? Yes, Yes, sir. sir. या ग्रेट। आप सबसे इम्पोर्टेंट बात पढ़ने वाले हैं हम कि मैंने यूज़र ऐड कर लिया, ग्रुप ऐड कर लिया, तो उसके साथ में ना सम इंफॉर्मेशन इज अपडेटेड। ओके, फॉर एग्जाम्पल टेल हाइपन n1 स्लैश etc स्लैश पास wd, ये आपके सामने ऑप्शंस है। ओके, ये टोटल 7 सेक्टर्स है। अब इसके साथ में हम मॉडिफाई करेंगे और उसके लिए हम नाम की एक कमांड है वो यूज करेंगे। कंटेंट चेंज करना है मुझे। ओके, फॉर एग्जांपल व्हाट इज दिस फर्स्ट सेक्शन? यूजर नेम, SEC इज यूजर नेम, दिस X इज अ पासवर्ड मास्क जो आपका पासवर्ड स्टोर करता है इन द फॉर्म ऑफ encrypted। थर्ड फील्ड इज यूजर आईडी, ये एक यूनिक यूजर आईडी होता है। हर यूजर को एट द क्रिएशन ऑफ यूजर वन यूनिक आईडी विल बी एसोसिएटेड विद दैट यूजर। फोर्थ नंबर में जो होता है वो होता है ग्रुप आईडी। फर्स्ट वन इज अ यूजर आईडी, सेकंड वन इज अ ग्रुप आईडी। नेक्स्ट में होता है उसका कमेंट नेम। कमेंट नेम इज नथिंग बट डिस्प्ले नेम। आपका जो अकाउंट है, जैसे डिस्प्ले के लिए क्या चाहिए, बेस्ट एग्जांपल ओम है। ओके, उसका एक्चुअल नाम क्या है? ओम है, बट वो डिस्प्ले नेम क्या लगता है? डैश किलर। सेम थिंग, आपका नाम SACSA, बट आपको डिस्प्ले के लिए कुछ और रखना है क्या? तो आप ये कमेंट नेम से रख सकते हैं। उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है होम डायरेक्टरी, एंड उसके बाद में नेक्स्ट पार्ट आता है नेक्स्ट शेल। मैं थोड़ा सा रिटर्न में आपको लिख जिससे आपको अंडरस्टैंड हो जाएगा। फर्स्ट जो ऑप्शन है 1 नंबर पे, ये जो होता है ये यूजर नेम होता है, यूजर नेम। सेकंड जो ऑप्शन होता है आपका ये होता है पासवर्ड मास्क। थर्ड जो होता है आपका ये होता है आईडी। ये रनिंग नोट्स वगैरह करते हो ना तो करो भला इसका, ये अब रिकॉर्डेड में भी अवेलेबल है, बट ये बहुत इम्पोर्टेंट है, बाद में भूल जाते हो आप। आप नहीं कुछ भी, मैं भी अभी हार्डली 2 मंथ मैंने प्रैक्टिस नहीं किया ना, तो मैं भी भूल जाता हूँ ये, बट अभी ये प्रैक्टिस बहुत हो गई है मेरी इसकी याद। बट फर्स्ट टाइम अगर पढ़ते हो ना ये पूरा इंफॉर्मेशन भूल जाता है। ग्रुप आईडी ये यूनिक होता है। 5 कमेंट नेम, 6 नंबर में होता है होम डायरेक्टरी, होम DIR, एंड लास्ट सेक्शन होता है आपका लॉगिन शेल। अभी इसका प्रैक्टिस जब करेंगे तो अब आपको क्लियर हो जाएगा। ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर के लास्ट के जो है ना वो वी कैन एबल टू चेंज दैट। ये 5 फील्ड्स हम चेंज कर सकते हैं। फर्स्ट, once we added user we cannot able to change the username। ये आप सबसे याद रखो, सबसे इम्पोर्टेंट बात। once we added user we cannot able to change his name। जैसे भी हम नेम चेंज करने की कोशिश करती है यूजर विल बी एडेड, बट उसको मॉडिफाई नहीं। दैट मीन्स once user will be added we cannot able to change। सेकंड, पासवर्ड मार्क होता है, कर सकते, इसके अंदर भी चेंजेस नहीं कर सकते, बट वी कैन एबल टू चेंज यूजर आईडी, वी कैन एबल टू चेंज ग्रुप आईडी, वी कैन चेंज वी कैन चेंज होम DIR, वी कैन चेंज लॉगिन से। अब इसमें इंपॉर्टेंट है कि होम DIR अगर चेंज करना है तो आपको पता है क्या करना है, एक फोल्डर और स्केल फाइल कॉपी कर लो तो हम इजीली चेंज। लॉगिन शेल मतलब उस पर्सन को आपको लॉगिन करने देना है, that term called as a login shell। Okay, so
लेट्स परफॉर्म वन बाय वन ऑपरेशंस। ये क्लियर है आपके सामने? सर एक क्वेश्चन है। हम्म सर वो जब एक यूजर मतलब मल्टीपल ग्रुप के साथ एसोसिएटेड रहता है, तो हम्म सर वो ग्रुप आईडी मतलब जब 5 WD में क्यों नहीं दिखाता सर इधर? ग्रुप जैसे की यहाँ पे इंफॉर्मेशन 1007। ओनली ग्रुप्स में होती है, यूजर की इंफॉर्मेशन ओनली यूजर के अंदर होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। If you want to find any user related information, then we will pass WD file. If you find any information related to the group, then group में दिखाएंगे। तो ये मल्टीपल टाइम एसोसिएट भी हुआ तो ये ग्रुप के अंदर नहीं दिखाई देगा, यूजर के अंदर नहीं दिखाएगा, और यूजर की इंफॉर्मेशन ग्रुप के अंदर नहीं दिखाई देगा। सेपरेट टू फाइल्स आर अवेलेबल, बट अ सर्टन नंबर ऑफ यूजर अगर एसोसिएटेड होते हैं, then that information will be displayed in the group because it is a part of group. अब see, assume I have one called as a developer. अब डेवलपर के अंदर 5 एम्प्लॉई है, 5 यूजर है, देन डेवलपर ग्रुप के अंदर 5 यूजर के इंफॉर्मेशन दिखाई देगा। बट वन ग्रुप इज एसोसिएटेड विथ यूजर, तो एक ही ग्रुप यूजर के अंदर दिखाएगा, वो भी यूजर आईडी से। सी, यहाँ 10100 एसोसिएटेड, कौन? SACAC इज एसोसिएटेड विथ 1000, वन ही दिखाएगा। मल्टीपल रहेंगे तो नहीं दिखाएगा। प्राइमरी जो होता है ना, जो जैसे हम कहते हैं कि प्रायोरिटी, प्राइमरी और वी कैन से दैट प्रायोरिटी, तो जो पहला रहेगा वही डिस्प्ले रहेगा, अदरवाइज। ओके सर। या क्लियर? वेट फॉर 2 minutes, I have just wait for 5 minutes, okay? Coding. Okay. ओके, और कोई क्वेश्चन है आपके? हॅलो सर. क्वेश्चन आहेत का काही, का आपण नेक्स्ट पुढे? सर हम्म बोला. सर ते आपण नेम नेम चेंज नाही करू शकत पण डिलीट करू शकतो ना? कशाचं? हे सर कमेंट नेम मध्ये आहे का? तर युजर म्हणते. सर युजर नेम. Username, once we created user, we cannot able to change. See, already user है, if you want to change, for example, I want to change this ACCSA to, we cannot able to change that. SCCSC1 will be another user. So that's why these last 5 fields we cannot able fields. Like if you want to change user ID, right now user ID is 1004, I want to change up to uh, 100. Then we can, yes, able to change that. Current group ID is 1007, we need to add one group, and by using that we can also change that group ID. Command name, yes we can change. Home directory, yes we can change. Shell, yes we can change. इसके अंदर दो होते हैं bin bash के अंदर, एक तो has been no login, that means the user cannot able to log in into system, and bin bash means login shell. अब इसके बारे में हम पढ़ने वाले हैं. So we can able to change only last 5 fields, we cannot able to change first 2 fields. सर ओके का? येस सर. ओके, ग्रेट. ओके, नेक्स्ट प्रोसीड करू ना मग? सर हम्म, सर आपल्याला जसं पासवर्ड अपडेट करता येतो हम्म. तर याच्यात चेंज करता येईल का जर विसरलो तर? येस, चेंज करता येतं. अपडेट मीन्स ह्याच्यामध्ये डायरेक्ट असतं. फॉर एक्झाम्पल, युजर नेम काय आहे माझ्याकडे आता? ACCSC अवेलेबल है, आई कैन चेंज द पासवर्ड ऑफ ACCSC. चेंज मतलब कि अपडेट ही करना होता है ना. पासवर्ड, पास WD SECSE,
ACCSC मेरे पास प्रिविलेजेस नहीं है sudo या हाँ आता इथे विचारतोय enter new password here I will write my name yes update successful okay ओके सर. anything ओम काही क्वेश्चन नाहीत आज हॅलो सर. सर म्हणजे अशा कंडिशन मध्ये एक युजर दुसऱ्या युजरचा पण पासवर्ड चेंज करून टाकन. नाही करता येत असं आता म्हणजे? रद्द मला रूट प्रिव्हिलेज आहे त्याच्यामुळे मला भेटतंय मला नाही करता येत तसं कंपनीच्या प्रोफाईल मध्ये तुम्हाला फक्त तुमच्या पुरतच युजरचा ऍक्सेस असतो वी कॅन राईट नाऊ तू ऑब्झर्व केलं नाही का सी Sudo हिअर आय एम चेंजिंग द पासवर्ड ऑफ ACCVC हॅव्हिंग सुडो प्रिव्हिलेजेस येस सुडो सर. मीन्स सुपर प्रिव्हिलेजेस आता ही पासवर्ड तुम्हाला माहित नसेल तर आय एम कॅनॉट एबल टू राइट एंटर न्यू पासवर्ड समझ में आ रहा है तो मैं येस सर. नहीं चेंज पाऊंगा म्हणजे तुम्ही पहिले सुपर युजर आहेत म्हणून तुम्हाला करता येते. नाही मी तर सुपर युजरचा पासवर्ड टाकतोय दरवेळेस हो. सुडो जेव्हा टाकतो ना मी तेव्हा मला सुपर युजर म्हणजे रूटचा पासवर्ड मला टाकावा लागतोय मगच मला चेंज करता येतो अदरवाइज नाही करता येत सो वी कॅनॉट एबल टू चेंज द पासवर्ड ऑफ अदर युजर्स ओके इफ सर. यू नो द सुपर सी यू आर द सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर तू करू शकतोस तू सिस्टम ऍडमिनिस्ट्रेटर आहेस तुझ्याकडे रूटचा पासवर्ड आहे तू कोणत्याही युजरचा पासवर्ड चेंज करू शकतोस तुला प्रिव्हिलेजेस आहेत ते बट आय एम अ नॉर्मल युजर आय एम फ्रॉम डेव्हलपर टीम and some other student or some other person is belong from the developer team we cannot able to change the password but being a system administrator super user you can able to change the password आप ऑब्जर्व कर रहे होंगे कि मैं हर टाइप सूडो कर रहा हूँ सूडो करने के बाद में वो मुझे सुपर यूजर का पासवर्ड पूछता है फिर आगे के टास्क होते हैं अदरवाइज नहीं होते जैसे देखो अभी सर ESCU सर आप बट आपने अगर जब नहीं क्या सर आपने पेस्को या फिर SCCSC से कुछ ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे थे तो वो नहीं हो रहा था सर. हाँ सी इसके प्रिविलेजेस है ये हायर इट इज नॉट सुपर यूजर बट लुक लाइक सुपर यूजर ओके इंस्टॉलेशन करते हैं ना तो मैंने ये नाम से किया था अरविंद नाम से आपको वही डेमो दिखा रहा हूँ sudo passwd ये क्या पूछ रहा है पासवर्ड ऑफ ACCSC sudo पासवर्ड ऑफ ACCSC ये क्या पूछ रहा है मालूम है क्या यूजर का पासवर्ड दो अगर सुपर यूजर का पासवर्ड पता नहीं है तो फॉर एग्जांपल एक कुछ मैं डालता हूं तो सॉरी ट्राई अगेन दैट मीन्स वी कैन नॉट एबल टू चेंज द समझ आ रहा है सो इसके अंदर अरविंद का भी सूडो यूजर मैंने बनाया वाला है इसकी वजह से ही इसके पासवर्ड्स है अदरवाइज मुझे हर टाइम रूट से लॉगिन करना पड़ता था तो ही मैं पासवर्ड चेंज कर पाऊंगा अदरवाइज नहीं तो मैं आपको बाद में भी पढ़ाऊंगा कि हाउ वी विल मेक नॉर्मल यूजर एज अ सूडो यूजर अभी मेरे पास ACCSC नाम का यूजर है वो नॉर्मल यूजर है सो मैं इसे सुपर यूजर बना सकता हूं तो आंसर इज यस यू कैन सुपर यूजर क्लियर है तो उसको बना सकता हूं बट ये जो प्रिविलेजेस होते हैं ना जैसे ऐड करना है रिमूव करना है डिलीट करना है ये सुपर यूजर ही अवेलेबल होते हैं नॉर्मल यूजर को ओनली डायरेक्टरी एंड फाइल रिलेटेड ऑपरेशन की ही परमिशन होती है अदरवाइज नहीं है और नॉर्मल यूजर को क्या लगता है स्टोरेज पोस्ट लगता है एंड उसे फाइल्स एंड डायरेक्टरी करने की परमिशन चाहिए दैट्स इट तो सर बट sudo यूज किया तो भी नहीं होगा क्या नॉर्मल नहीं यूजर में. नहीं होगा नॉर्मल यूजर को पासवर्ड पता होना चाहिए तो ही होगा अदरवाइज नहीं होगा सूडो से क्या करते हैं कि स्विच यूजर करते हैं हम सुपर यूजर को तो सुपर यूजर का पासवर्ड तो पता होना चाहिए ना आपको तो ही पॉसिबल हो सकता है ना जब इंस्टॉलेशन करते हो तो वो आपको विल बी ट्रीटेड एज अ सुपर यूजर हो सकता है but normal user that in that case SCCSC is a normal user we cannot able to add user from SCCSC see it is a SCCSC here I'm trying to add user demo see the most likely caused this lack of administrative privileges associated with user account
यहाँ ही लिख के दे रहा है कि ये प्रिविलेजेस किसके एसोसिएटेड विद द सुपर यूजर, बट यही मैं अगर sudo करता हूं तो ये सुपर से स्विच हो जाता है। पासवर्ड पूछता है मुझे किसका, SCCSE का पासवर्ड नहीं पूछ रहा है मुझे, ये सुपर यूजर का पासवर्ड पूछ रहा है। तो ये पॉसिबली हो सकता है, बट ये सुपर यूजर नहीं है। सी SCCSE इज नॉट द sudo यूजर फाइल, यहाँ लिख के आ रहा है भी रिपोर्ट। अभी ये लॉग फाइल में चलेगा। अब ये एडमिनिस्ट्रेटर क्या करता है कि वन पर्सन इज ट्राइंग टू क्रिएट अ यूजर ऑन बिहाफ ऑफ मी, अगर उसे गलती से पता भी चलता है तो ऑन बिहाफ ऑफ मी, तो उस पर कुछ एक्शन हो सकती है। सो इसकी वजह से नहीं होता है। और उसके भी प्रोसीजर्स होते हैं कि कैसे हम sudo यूजर ऐड करते हैं, तो वो लेटर ऑन विल डिस्कस कैसे करते हैं। उसके लिए sudo फाइल नेम sudo फिर पाथ पास करना पड़ता है, तो ही वो sudo यूजर होता है। और उसके लिए भी रूट का पासवर्ड लगता है आपको, अदरवाइज हम नहीं कर सकते। ओके सर ओके सर। बोलो। सर आपल्याला रूटचा आयडी आणि पासवर्ड नाही माहिती, मग कसं करायचं? रूट पासवर्ड सेट करून देतो ना तुम्हाला मी, सांगतो मी। हे थोडंसं बेसिक बेसिक लेवल क्लिअर होऊ द्या, आफ्टर दॅट आय विल अपडेट यू हाउ विल चेंज द रूट ओके सर. पासवर्ड। राईट नाउ इट इज नॉट मॅन्डेटरी, focus on the basic things. Still we don't have enough knowledge of basic things right now. Here only we are trying to add the user and add groups. Later on we need permissions. Before that we need to change the ownership. Once we clear the ownership and once we clear the permission, later on definitely I will update you how to change the root password. Even though I'm not trying to taught you as a rm command. Rm command is a so dangerous command, so that's why कोई भी नहीं पढ़ता है आरएम कमांड। गलती से अगर पार्टीशन डिलीट हो गया है तो एवरी जो भी पूरा डेटा है वो कंपनी का, या वी कैन से दैट ओन डेटा विल बी क्रैश। सो दैट्स व्हाई सम इंपॉर्टेंट की फीचर्स आर रिमेनिंग, स्टिल रिमेनिंग। आई विल अपडेट यू लेटर ऑन, जैसे जैसे मुझे पता चलता है कि आप कब बढ़ रहा है लर्निंग, then definitely I will update you. Right now we cannot able to say that. सर अगर वो आरएम कमांड हमने वर्चुअल मशीन के उबुंटू में यूज किया तो स्टिल आपका जो वर्चुअल जो पार्टीशन है वो डिलीट हो सकता है, उसका डेटा जा सकता है। मेन हार्ड डिस्क का नहीं जाएगा, बट वर्चुअल का डेटा जा सकता है। इसीलिए तो कंपनी में रेस्ट्रिक्शन होता है आरएम कमांड के ऊपर। वी कैन नॉट एबल टू यूज आरएम कमांड। मैक्सिमम जगह ये पढ़ाई भी नहीं जाता है कि आरएम कमांड होता क्या है। इवन दो रेड हैट स्टूडेंट के अंदर जो भी होते हैं उनको बताया भी नहीं जाता है कि व्हाट इज आरएम कमांड। गलती से अगर कुछ क्रैश हो गया या मेन सर्वर पे ही काम कर रहा है, क्रैश हो गया तो पूरा डेटा चले जाता है उसके अंदर से। इवन दो वी कैन यूज वर्चुअल मशीन, तो वर्चुअल मशीन का डेटा जाएगा। हॅलो सर, हम्म आता म्हणजे एखाद्या युजरला आरएम यूज करण्यापासून रिस्ट्रिक्ट कसं करणार मग याच्यात? करता येतं ना, आपल्याला लिमिटेशन देता येतात, नाही रेस्ट्रिक्शन ऍक्च्युअल म्हणजे आरएम नाही, दुसऱ्या कोणत्या पण एखाद्या कमांड मला समजा यूज नाही करू द्यायचे तर कसं? करता येतं त्याला। हे पण मी तुम्हाला नंतर सांगेल। येस विथ दैट इवन दो वी कैन क्रिएट आवर ओन कमांड्स, हम हमारे ओन कमांड भी कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आई वांट टू क्रिएट माय माझ्या नावाची मला कमांड बनवायची, सो इझिली आई कॅन डू दैट राइट नाउ। स्टिल संजनाने जसं सांगितलं, जस्ट वी नीड टू फोकस ऑन द बेसिक थिंग्स राइट नाउ। बेसिक थिंग्स जर आपल्याला चांगल्या माहित असतील, सी आपले चॅप्टर्स आणखी कंप्लीट नाही झालेले। आता याच्यानंतरचा चॅप्टर आपला ओनरशिपचा आहे, उसके बाद में हमारा चॅप्टर परमिशंस का है, उसके बाद में फाइंड है, टार है, और उसके बाद में पार्टीशन है, माउंटिंग है, अनमाउंटिंग है, और उसके बाद में स्वैपीनेस है। और ये होने के बाद में आपका एस का एक टॉपिक बाकी है, जीपस एस भी नहीं लिया था मैंने, तो उसका एक टॉपिक है। ये सब होने के बाद में हम एडिशनल लेके विल कवर देंगे। ओके ओम। ओके सर. येस सर. ओके Fine. जस्ट आया आपको, वो समझ में आया आपको? सेक्शंस स्लैश टी येस हाइपर सर. N1 सेक्शन समझ में आया आपको? वो इम्पोर्टेंट है राइट नाउ, वो कंप्लीट करते हैं हम। ये सेक्शन समझ में आया आपको? नाउ अब मुझे क्या करना है, आई वांट टू चेंज माय यूजर आईडी। जो मेरा यूजर आईडी 1004 है, आई वांट टू चेंज, ये मुझे चेंज करके 1100 करना है। सो कैन आई एबल टू चेंज? द आंसर इज यस, यू कैन
how will change that? User mod, okay, hyphen u for user. After that अपडेट करना है कितना, 1100, एंड द नेम ऑफ यूजर SECSE. कैसे करना है? यूजर मॉड क्या मॉडिफाई ना यूजर को, इसलिए यूजर मॉड लिया है. तो इसमें नाम जो दिए होते हैं ना कमांड के, तो सिमिलर वर्किंग के लिए होता है. नाम से ही पता चलता है कि ये कमांड क्यों यूज करते हैं. सो यूज मॉड क्या चेंज करना है? आई वांट टू चेंज यूजर आईडी, इसलिए हाइपन यू यूज किया है. इफ यू वांट टू चेंज द ग्रुप आईडी देन आई यूज हाइपन जी. इफ यू वांट टू चेंज द होम डायरेक्टरी द कमेंट नेम देन हाइपन सी. डायरेक्टरी के लिए हाइपन डी एंड शेल के लिए हाइपन एस यूज किया जाता है. बट इसमें भी है, वन बाय वन हम चेक करते हैं. सो हियर आई विल चेंज पासवर्ड डिनाइड sudo, yeah, done. We'll check out grep, yeah, this one. Right now check out. यहाँ मैंने क्या दिया था? 1004 दिया था. राइट नाउ क्या है मेरा? 1100. क्वेश्चन है, change my user ID? Yes, you can change your user. Now can I able to ID? Yes, you can change the group ID. So group ID चेंज करना है तो उसके लिए ग्रुप्स चेक करना पड़ेगा मुझे. pass wd, sorry, del hyphen n1 slash etc slash group. ग्रुप तो एक ही अवेलेबल है मेरे पास, 1008. ओके, सो टेल इट पासवर्ड. अब इसको क्या करेंगे? 8 करेंगे. सो से sudo user modify user mod hyphen g for group name is 8 and username is SECSE. Done. We'll check. यहाँ 1007 है, 1008. अब हमारे पास क्या है? 1008 है. अब इसको मैं थोड़ा सा अलग, एंड द ग्रुप नेम इज 100. क्या होगा? चेंज होगा या नहीं होगा? ग्रुप आईडी एज 100 होगा, 100. ओम तुला काय नो वाटतं, सर. चेंज होईल का? प्रतीक, चेंज होगा? प्रतीक, नाही माहित सर. गुड आन्सर. पता नाही तो नाही माहित म्हणणार पाहिजे. श्रुती, आदना नाही नाही, चेंज होगा श्रुती? पता नाही सर. ओके, आता एक जणाने सांगितलं पता नाही, तसं पता नाही. मग सर खरंच. खरंच. ओके, ठीक आहे. पॉल, नेट यूजर मोड वैलिड कमांड. वैलिड चेंज होगा? यस सर, ट्राई करें. ट्राई वाले हम. अदनान, अब्दुल, रितिका, चेंज. अरे किती जण आहेत रे ओम आता सध्या सेशनला? Twenty-four. 24. आता मला इथे नाव दिसत नाही आहेत मुलांचे. सर चेंज ओके. होईल तो. चेंज होईल. हा सर, युजर मॉडिफाय केलं सर आपण. ओके, हे कोण बोलतंय? राधेश्याम सर. चेंज होईल? मला नाही वाटत चेंज होईल. बघा सर, एंटर दाबा. एंटर करू का? ठीक आहे. डज नॉट एक्झिस्ट. हम्म? नाही सर. What? सर क्योंकि ग्रुप का आईडी अलग है ना सर. कौन सा? सर SECSE ग्रुप का आईडी अलग है ना सर. कौन सा? सर SECSE बोल रहा हूँ. हाँ तो मैं ACCAC नहीं दे रहा.
मुझे आई वांट टू चेंज एज अ 100. So what does it mean? पास ग्रुप अवेलेबल नहीं है हैविंग नंबर 1100, दैट नॉट एबल टू चेंज द ग्रुप आईडी. अगर आपके पास ग्रुप आईडी होता है 1100 का, देन एंड देन वी कैन चेंज दैट. tel -n5 /etc/group के अंदर के जो ये ग्रुप है 100, 1005, 1008, तो हम चेंज कर पाएंगे. जितने अवेलेबल है उतने ही ग्रुप आईडी चेंज कर सकते हैं. ये रिस्ट्रिक्शन यूजर के लिए नहीं. ओके, यूजर के लिए हम चेंज कर सकते हैं, बट ग्रुप के लिए ग्रुप एग्जिस्ट होना बहुत जरूरी होता है. इफ वी डोंट हैव ग्रुप नंबर तो हम नहीं कर सकते. अभी राइट नाउ 1100 का ग्रुप, बट स्टिल यहाँ क्या करता हूँ, थोड़ा सा चेंजेस करता हूँ. इंस्टेड ऑफ दैट 1004 करता हूँ. ये 1004 एग्जिस्ट है तो इजीली चेंज हो जाएगा. ये देखो 1004 आ गया. दैट मीन्स व्हाट, जब भी आप यूजर चेंज करते हैं, यूजर आईडी चेंज करते हैं, तो यूजर आईडी इजीली चेंज होता है, बट ग्रुप आईडी चेंज करने के लिए ग्रुप एग्जिस्ट होना जरूरी होता है. ये इंपॉर्टेंट की पॉइंट है. इज इट ओके? यस सर, क्लियर सर. राइट. ओके, ना यूजर आईडी भी चेंज कर लिया और ग्रुप आईडी भी चेंज कर लिया. यूजर आईडी के लिए -u यूज किया था, ग्रुप आईडी के लिए हमने -g यूज किया था. अब हम करेंगे कमेंट नेम, empty है. ओके, सो हियर आई विल यूज sudo user mod -c फॉर कमेंट नेम, और यहाँ मैं डिस्प्ले करता हूँ abc. क्या नाम किया है मैंने, मेरे SEC यूजर का डिस्प्ले नेम क्या होगा, abc, और यूजर का नाम क्या है, SECAC. यूजर का नाम क्या है, SECAC. एंटर एंड चेकआउट. सी, यहाँ कुछ भी नहीं था, कॉलम कॉमोस थे, ABC है. So easily we can change the कमेंट नाम. अभी लॉगिन करते समय ABC नाम दिखाएगा SECAC यूजर करते समय. एक्चुअल यूजर नेम इज SECAC, सो इसे डिस्प्ले नेम भी कहा जाता है एंड कमेंट नेम भी कहा जाता है. अब इसका ना थोड़ा सा और चेंज करते हैं. कमेंट नेम हम ऐसा लिखते हैं, फॉर एग्जांपल मेरा नाम लिखता हूं मैं. अब चेंज हो पाएगा क्या? कमेंट नेम चेंज होगा, यस और नो? यस सर. नहीं होगा, और हो नहीं होगा तो क्या होगा? डिस्प्ले नेम क्या आएगा, अभी फुल नेम आएगा या हाफ नेम आएगा? ये आएगा. जस्ट इमेजिन, सी लैंग्वेज में पढ़ाया था मैंने \0. किसी को याद है \0 का मीनिंग क्या होता है? यस सर, एंड ऑफ द स्ट्रिंग. एंड ऑफ द स्ट्रिंग. अभी ये स्ट्रिंग एंड हो गई है क्या, दिखाई दे रही है आपको? सी, एम्प्टी जो होता है ना, उसे कहते हैं \0 एंड ऑफ स्ट्रिंग. तो ये जब मैंने, तो नहीं हो पाएगा. व्हाट इज द रीजन? अगर नेम, अगर ये कंप्लीट नहीं है, इसका नेम क्या है, जस्ट 1 मिनट. sudo user mod -c a the and the username is SECAC. सी हो पा रहा है? क्यों नहीं हो रहा है? बिकॉज क्या है कि ये स्ट्रिंग यहां से स्टार्ट हो गई, और ये जो एम्प्टी स्पेस है विल बी ट्रीटेड एज अ बैकस्पेस \0. तो ये समझ क्या पा रहा है कि अरविंद नाम का नाम है, कमेंट नेम है, जादव इज अ यूजर नेम, इसकी वजह से वो कंफ्यूज हो रहा है.
तो इसे कंफ्यूजन दूर करने के लिए हमने देखा था कि डबल कोट यूज करना है, विच विल बी इट विल बी ट्रीटेड, ये क्या करेगा, सिंगल स्ट्रिंग स्ट्रेट करेगा, तो ये डिस्प्ले कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। अभी यही सेम ऑपरेशन आप ये क्या करेगा कि ओनली फर्स्ट नेम ले लेगा, सेकंड नेम को नहीं लेगा, क्योंकि वो कंसीडर कर रहा है कि इसके बाद में स्ट्रिंग खत्म। रेड हैट में करते हो, फेडोरा में करते हो, तो जस्ट अरविंद विल बी स्टोर्ड, जादव नहीं होगा उसके अंदर। अगर आपको पूरा का पूरा नेम चाहिए देन वी विल बी यूज डबल कोट। अब हो जाएगा, दिखाई दे रहा है? नाउ चेक आउट डिस्प्ले नेम, ये पूरा क्लियर कर लिया जब मैंने डबल कोट डाला। इसी के कंसेप्ट है, याद आ रहे कि नहीं है कुछ, ये भूल गए सी लँग्वेज? क्लियर सर। असं तर वाटतंय मला विसरून गेलेत म्हणून। लॉकडाउन का बहुत बड़ा इफेक्ट, ऐसे भी जब आप सेकंड ईयर को जाते हैं ना तो सी लैंग्वेज भूल ही जाते हैं। लॉकडाउन का बहुत बड़ा इफेक्ट हो गया है, वो डोंट नो अबाउट द बेसिक कंसेप्ट ऑफ सी लैंग्वेज। इसलिए मैंने पूछा कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ \0। नाम एकदम परफेक्ट बताया था आंसर, एंड ऑफ लाइन। कौन है एंड ऑफ लाइन वाला? प्रवीण ठाकुर। प्रवीण, आंसर आपकी कंसेप्ट क्लियर है, बट प्रैक्टिकल ओरिएंटेड देखिए, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा तो ही हम आगे जा सकते हैं। सी वी आर लर्निंग अ लिनक्स, दैट डज नॉट मीन कि आप सी लैंग्वेज को भूल जाओ या बेसिक कंसेप्ट को भूल जाओ। ओके, फॉरगेट दैट। सो यहाँ हमने क्या चेंज किया है, डिस्प्ले नेम। नाउ वी विल अपडेट डिस्प्ले नेम एज अ स्मॉलर, here I will use admin, that's it, छोटा नेम। नाउ एवरीथिंग इज ओके। हमने यूजर चेंज किया, आप कमेंट नेम भी चेंज किया। नाउ वी नीड टू चेंज द होम डायरेक्टरी। अब क्या करना है, मुझे होम डायरेक्टरी चेंज करना है। होम डायरेक्टरी क्या है मेरे पास, होम ACC है। नाउ टू चेंज द होम डायरेक्टरी। ओके, सो टू चेंज द होम डायरेक्टरी फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू क्रिएट द होम डायरेक्टरी। यहाँ जाके मुझे होम डायरेक्टरी क्रिएट करना पड़ेगा। ओके, क्रिएट mkdir admin, ls admin is available। now first कि एडमिन नाम का डायरेक्टरी अवेलेबल है। नाउ वी विल चेंज sudo यूजर मॉड -d फॉर डायरेक्टरी, कहाँ है, होम के अंदर /admin। यहाँ मुझे पाथ, एक्चुअल पाथ देना पड़ता है, रिलेटिव पाथ नहीं चलता है, जो एक्चुअल पाथ है वही देना पड़ता है, एंड द नेम ऑफ दैट ACCSC। डन। नाउ विल चेक, सी होम डायरेक्टरी क्या हो गई मेरी, होम एंड एडमिन। नाउ मैं लॉगिन कर पाऊंगा अभी? चलो वो भी चेक करते हैं। sudo नेम ऑफ द यूजर SECSE लॉगिन हो पाएगा? नो सर। नो, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? सर उसमें वो बैश फाइल्स नहीं है सर, वो कॉपी करनी पड़ेगी। हो गया है, बट इसका कलर चेक करो और इसका कलर चेक करो आप। व्हाट डज इट मीन कि उसके जो बेसिक फाइल्स होते हैं ना वो अवेलेबल नहीं। फॉर दैट वी नीड टू कॉपी, क्या करना है, हमें कॉपी करना है sudo cp, कहाँ कॉपी करना है, होम। ओल्डर डायरेक्टरी क्या थी इसकी, SE, ओल्डर डायरेक्टरी क्या थी, SECSC। और अभी ये डिफरेंट डिफरेंट पैटर्न है। उबंटू में अलग रहता है थोड़ा सा डायरेक्टरी का, ये फेडोरा में थोड़ा सा अलग होता है, बट मीनिंग वही होता है। डॉट हिडन फाइल्स, और कहाँ कॉपी करना है, होम के अंदर से जाके एडमिन में करना है, कॉपीड। डन। अब यहाँ से क्लियर हो जाएगा, अब कुछ नहीं होगा। sudo su hyphen name of that directory is SECSC। नाउ चेक आउट, कलर चेक करो आप इसका, दैट मीन्स ऑल फाइल्स आर कॉपीड। चेक करना है तो आप CD होम में जाके चेक करो /admin में कि फाइल्स दिखाई दे रही है, ls-a से हिडन फाइल्स, फाइल्स कॉपीड है, yes, 4 फाइल्स आर कॉपीड। ओके,
डन। तो हमने क्या टेल स्लैश हाइपन n1 स्लैश etc स्लैश पास w। हमने यूजर आईडी पढ़ लिया, आईडी पढ़ लिया, कमेंट नेम पढ़ लिया एंड डायरेक्टरी भी पढ़ लिया। नाउ वी नीड टू चेंज द शेल। अब ये शेल के अंदर ना पहले थ्योरेटिकल देख, स्लैश बिन स्लैश बैश अगर किसी यूजर के आगे लगता है दैट मीन्स दैट यूजर कैन लॉग इन इनटू सिस्टम। अगर किसी के आगे स्लैश एस बिन स्लैश नो लॉग इन होता है दैट मीन्स टू लॉग इन इनटू सिस्टम। पहले हम क्या करते हैं, टॉप के कमांड देखते हैं, कैट स्लैश ई स्लैश पास wd। थोड़ा सा अब यहाँ आगे देखो यूजर है, ओके सी यहाँ नहीं है बिन बैश फॉल्स 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 फॉल्स। बिन बैश मतलब लॉगिन कर सकते हैं, लॉगिन कर सकते हैं। ये बिन न्यू अपडेट बिन फॉल्स, तो यहाँ पहले एस बिन होता था। विल चेक इट, हम चेक करके ही देखेंगे। ओके नाउ अभी मेरा SCCS यूजर है, उस यूजर को मुझे नो लॉगिन देना है। देन आई विल डू sudo यूजर मॉड हाइपन चेंज एस शेल, शेल चेंज करना है, स्लैश एन बिन स्लैश नो लॉगिन। ओके SECSE डन कर लिया मैंने, शेल चेंज किया है। अभी मैंने थ्योरी में दिखाया था आपको, बिन बैश मतलब लॉगिन, स्लैश एस बिन नो लॉगिन मतलब नहीं है। तो हम ट्राई करते हैं उसको लॉगिन करने का। sudo su dash ESECSE सी cannot execute has been no login, no such a file or a direct। इन कर पा रहा हूँ क्या, नहीं कर पा रहा हूँ। तो यही रेड हैट में रिस्ट्रिक्टेड बोल के नाम आता है ये थिंग, जैसे यहाँ दिखाई दे रहा था false। यहाँ भी मैं लॉगिन कर पा रहा हूँ क्या CCS में, नो लॉगिन। तो आप फॉल्स भी पास कर सकते हो, नो लॉगिन भी पास कर सकते हो। तो आपको ये पास करने के बाद में आपको एक्सेस मिलेगा क्या, नहीं। अब मैं शेल फिर से चेंज करता हूँ, sudo यूजर मॉड हाइपन एस स्लैश बिन स्लैश बैश। बैश मतलब क्या होता है, लॉगिन होता है किसका, SCCS। यूजर मॉड चाहिए, मॉस आ गया था। डन। नाउ आई एम ट्राइंग टू लॉग इन, सी आई एम लॉग इन। अभी डिपेंडिंग है, उबंटू में थोड़ा सा डिस्प्ले मैसेज अलग आते हैं या रेड हैट में थोड़ा सा डिस्प्ले मैसेज अलग आते हैं, डिफरेंट मीनिंग इज सेम। तो आपको याद क्या रखना है, स्लैश बिन स्लैश बैश तब क्या होता है, लॉगिन, एंड स्लैश एस बिन नो लॉगिन मतलब क्या होता है, नो लॉगिन। Either also we can use slash bin slash false, मतलब क्या होता है, नो लॉगिन। क्लियर है 3 पॉइंट। यस सर। ओके एक बार फिर से रिवीजन कर, क्विक रिवीजन। इफ यू वांट टू चेंज द यूजर आईडी देन आई विल यूज हैश sudo यूजर मॉड हाइपन u फॉर यूजर आईडी। जो भी डालना है आपको, चेंज करना है, वॉट एवर इट मे बी, 10 yeah we can say that 11 and username। क्या आएगा, यूजर आईडी। इसको आप लिख सकते हो
hash sudo user mod -g group id and user name। कमांड है हमने पढ़ी hash sudo user mod -c comment name, जो भी लिखना है इंडेपेंडेंट use double quote if it is a single string then also use double quote, तो क्यूरी नहीं आएगी आपको यूजर ने। उसके बाद में हमने डायरेक्टरी चेंज किया था sudo user mod -d dir name यूजर ने। उसके बाद में हमने पढ़ा था hash sudo user mod -shell /yesbin/no login ये नो लॉगिन के लिए, और एक पढ़ा था उसके अंदर ही sudo user mod -s shell / यूजर। मेरे को याद है इसी वजह से, क्योंकि मैं प्रैक्टिस कंटिन्यू था मेरा, इसकी वजह से याद। अदरवाइज अगर प्रैक्टिस कंटिन्यू है तो आपको जस्ट यूजर के मॉडिफिकेशन करना है तो यूजर मोड कमांड याद आता है, बट आगे कुछ भी याद नहीं आता। सो इस आई विल जस्ट डू प्रैक्टिस, तो ही कुछ मीनिंग है, अदरवाइज नहीं। इज इट ओके? ओके सर। Yes, इसको sir. Yes, कोई डाउट sir. या अभी रुकना है या आगे बढ़ना है? ऐड यूजर का भी, यूजर ऐड का भी देखा, ग्रुप ऐड ग्रुप का भी देखा, एंड एज वेल एज डिटेल में हमने इसके बारे में भी पढ़ा है कि डिलीट यूजर एंड यूजर डेल। फिर उसके बाद में हमने ऑलरेडी एग्जिस्टेड यूजर है उसे ग्रुप में कैसे, ऑलरेडी एग्जिस्टेड यूजर है और ऑलरेडी एग्जिस्टेड ग्रुप है, उसके बारे में भी हमने पढ़ा। ओके Okay, sir. या अभी मेरे पास इसके भी अवेलेबल है, आगे के नोट्स मेरे पास अवेलेबल। इट टुक सम टाइम टू क्रिएट दैट नोट्स। अगर रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो इसके आगे के भी नोट्स बना के देता हूँ मैं आपको। अभी डिपेंडिंग, ये ओनरशिप का है, ओनरशिप नहीं पढ़ा है मैंने। यूजर ऑपरेशंस पूरा का पूरा इस डॉक्यूमेंट में मिले विथ एग्जाम, तो आपको बहुत इजी जाएगा लर्निंग के लिए। ये पूरे डॉक फाइल्स है, इसको बनाने को भी बहुत टाइम लगता है, बट सी यहाँ मैंने लॉगिन शेल का भी इंफॉर्मेशन दिखा है। सी दिखाई दे रहा है आपको, हैज बीन नो लॉगिन, टेस्ट इज द यूजर नेम। तो उसके बाद में यूजर लॉगिन नहीं कर सकता है, यूजर डिलीट करना है, लाइक दैट, ये पूरा इंफॉर्मेशन है। सो ये अभी मैं आपको नोट्स तो फिलहाल, बट जो रिकॉर्डिंग है वो आपको इट टुक सम हाफ एंड 1 आवर, बट मैं यहाँ नहीं हूँ अब, तो एक तो शाम को मैं आपको रिकॉर्डिंग, स्टिल आपके रनिंग नोट्स होंगे तो आप प्रैक्टिस करो। जैसे भी मेरे पास अवेलेबल हो जाता है तब मैं आपको रिकॉर्डिंग भेज दूंगा इसकी। सर सर उबंटूवर फक्त एकच व्हर्च्युअल मशीन क्रिएट करता येते का? नहीं, वी कैन also, but we can use one machine at a time। एक ही मशीन यूज कर सकते हो एट अ टाइम। कारण की सर मी काल ट्राय केलं तर ते टेक ओनरशिप म्हणतंय काहीतरी. नाही, ती मशीन बंद करा आणि दुसरी मशीन चालू करा, होते, काही प्रॉब्लेम नाही। ओके क्यूरी सर. आली तुम्हाला दाखव एकदा, बट वी कॅन क्रिएट, बट सायमल्टेनियसली वी कॅनॉट यूज अ टू मशीन। तुझं प्रोसेसर कोणतं आहे? 3 आहे? सर ते नाही माहिती मला. हे माहिती पाहिजे, बिंग अ कंप्यूटर इंजीनियर, ये पता माई कंप्यूटर और दिस पीसी। उसके बाद में अंदर जाने के बाद में आपको आपकी मेमोरी कितनी है, रैम कितनी है, कौन सा आर्किटेक्चर है और प्रोसेसर कौन सा है, ये सभी। अभी मेरे पास ना ये है, लिनक्स पे लॉगिन हूँ मैं, तो इसलिए अभी नहीं दिखा सकता, नहीं तो राइट नाउ मैं अभी दिखा देता था आपको। सो वी नीड टू अंडरस्टैंड दिस थिंग।
बीइंग अ कंप्यूटर इंजीनियर आपको ये सब आना चाहिए, हार्डवेयर के पार्ट्स, फॉर्मेटिंग्स वगैरह ये भी आना चाहिए।